Welcome back to yet another session, students. So today we are going to start with the last chapter of electronics paper 1, that is applied electronics. Only one chapter is left, and that is the last chapter in your set of in your index also. That is study of integrated circuits, the 6th chapter. Now this chapter has a weightage of 10% of your total syllabus. It has a weightage of 10%. So there were some comments, there were some students asking me, ma'am, ये जो आप weightage बताते हो वो marks है या percentage है? It's always percentage, right? कि if it is 20, if I'm saying 20% means total paper में से 20% जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पर्टिकुलर चैप्टर का होगा. ठीक है, वैसे देखा जाए तो पेपर 1 में सबसे लीस्ट वेटेज जो था वो है ये चैप्टर, दैट इज स्टडी ऑफ आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, जो मैंने जस्ट इसके पहले जो वीडियो डाला था, दैट वाज ऑफ transducer. So these two chapters have the least weightage in paper 1, transducer and study of integrated circuits. Now please check the playlist. There are some students checking only one video and telling ma'am ये chapter का सिर्फ एक ही video है. कोई भी चैप्टर का एक वीडियो नहीं है. इवन इफ इट इज अ थियोरी चैप्टर, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्रांसड्यूसर्स है, थियोरी चैप्टर्स है, फिर भी उसके 2 वीडियोस है. आप अगर प्लेलिस्ट चैनल में जाके प्लेलिस्ट दबाएंगे, प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर्स के फोल्डर्स दिखेंगे आपको. उसमें क्लिक करके यू हैव टू गो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे लिखा है मैंने, तो एक एक पार्ट करके देखिएगा. ओके. Okay, so starting with the new chapter, that is study of integrated circuits. Integrated circuits, ये आपने पहले भी सुना है word IC, right? IC, आपने बहुत सारे ICs देखे, हमने OPAM में भी एक IC देखा है, पावर सप्लाई में IC देखा है. तो IC ये word new नहीं है, right? IC means it's a package जिसमें हम जैसे बहुत सारी चीजें को अलग अलग लगाने से बेहतर एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स को हमने एक छोटे से पैकेज में किया है, छोटे छोटे पैकेजेस में, राइट? दैट इज एन आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. सो इन दिस चैप्टर एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आईसीज being used. Number 1, that is IC 555. Okay, the first type which is being taught in this chapter is IC 555. The second one is OPAM related, which we have already seen in the chapter OPAM, operational amplifier, that is IC 741. Okay, so this already we have done in that chapter. तो ये वीडियो में मैं वापस वही नहीं डालूंगी. In the link, in the description, whenever first we will see this, okay, and in the description box I will put the links of IC 741 also. ये OPAM chapter में आप OPAM playlist open करेंगे तो आपको IC 741 का पूरे details मिल जाएंगे, क्योंकि वो chapter में हम complete कर चुके हैं. Okay, and the third one is IC LM 317. Okay. LM317 is also seen in the power supply chapter. Okay, it is used for what it is used and all. So in power supplies chapter we have already seen that LM317 is used for regulation, voltage regulation. जो भी ripples है वो निकाल के regulated voltage supply देने के लिए हम LM317 use करते हैं. So these 2 chapters are already being almost, you are familiar with these 2 ICs, but this one IC 555 is new to you, and we will see more details about it. Now IC 555 is very common and one of the favorite ICs because ये बहुत सारी जगह पे use हो सकता है. Okay, now this can be used in timers, it can be used in various electronic projects जो इंजीनियरिंग में वगैरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं. टाइमर्स यूज होते हैं, काउंटर्स यूज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों में अलार्म सर्किट्स होते हैं, या फिर you know, अगर आपको if you know, in engineering we make lot of projects. If I want to make a burglar system or an alarm circuit, alarm जैसे चोर घुस रहा है अलार्म बजेगा, ऐसा कोई अलार्म सिस्टम यूज करना, तभी भी IC 555 यूज हो सकता है. Various other things, ठीक है, बहुत सारी चीजों में IC 555 यूज होता है. That is why we are going to study that now. Fine.
So this is the chapter which I'm talking about, study of integrated circuits. Weightage is, I repeat, weightage is 10%. ठीक है, 10% of the total listing. Now there will be one question in your exam. Draw the pin diagram of IC 555. मैंने आपको बताया है, शायद पहले भी दिखा है, ICs कैसे दिखते हैं. IC बहुत छोटे ब्लैक कलर के पैकेजिंग में आता है. I'm sure if you've gone while doing electronics practicals in the electronics lab, you must have seen ICs of various gates, right? तो IC 555 का ये गेट है. This is a notch. कैसे पता चलता है उस पे अपर साइड, ऊपर का साइड कौन सा है? ये आपको नॉच जो है, हमेशा कोई भी आईसी का नॉच ढूंढना है. अगर ये नॉच नहीं है तो एक डॉट होगा, एक ऐसे ऐसे छोटा सा डॉट होगा. वो डॉट मतलब वो साइड का जो पिन है, दैट इज पिन नंबर 1. तो ये नॉच अगर नहीं है तो आप डॉट ढूंढोगे, डॉट नहीं है तो नॉच ढूंढोगे. ठीक है. सो इट इज एन 8 पिन आईसी. कितने पिन है टोटल? 8 पिन आईसी है. 4 on one side, 4 on the other side. Always when counting the pins or writing the pins in the exam, it is, you start from the top. 1 2 3 4. Do not write 5 over here, that's wrong. Okay, 4 के बाद आप नीचे से ही स्टार्ट करोगे दूसरी तरफ. Okay, नीचे से स्टार्ट करोगे. This is a very common mistake children make. Okay, so after 4 you do not jump off to the top side. No, you will continue in the lower side only, at the other side, and write 5 6. Oh, my 6 looks horrible. 6 7 and 8. Okay, so this is how you will draw the pins. What are these? These are pins. Let us see what all it stands for. The first pin is connected to ground. Second trigger, third is output, fourth is reset, fifth is control, sixth one threshold, seventh discharge, 8 VCC. अब ये सब क्या है वो आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखाई देगा. ये ऐसे it's just the pin, what the pin stands for, and you have to learn the name of every pin. Okay, it was latestly asked in जून 2018 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ IC 555. तो आपको ये ड्रॉ करना है, हर पिन का नीचे आपको नाम लिखना है. ओके, सो लेटेस्ट एग्जाम में भी ये पूछा गया था, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. नाउ वी विल सी. ये तो ऐसे बाहर से ऐसे बॉक्स दिखता है, इसके अंदर है क्या? अंदर क्या है वो देखते हैं. अंदर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. ओके, आई हैव ट्राइड टू मेक इट इनटू कलर कोडिंग्स. This is the purple color is section 1. This is the voltage divider section. देखिए आप 3 resistances है, 1 2 and 3. 3 resistances are there. और ये तीनों resistances का वैल्यू है 5K, 5 किलो ओम. ये भी है 5 किलो ओम. ये भी है 5 किलो ओम. This is also 5 kilo ohm. Okay, so all 3 resistances are 5 5 5 5K 5K 5K. That is why ये बंदे का नाम है 555 IC. Why? What is the name 555? Because there are 3 identical resistors 5 5 5. That is why it is 555 IC. इसका नाम है 555 IC. Okay, now just look at the pin. Just look at the diagram, block diagram. ठीक है. Now this is, suppose the first section, it is divided into 3. When you are learning also, learn it in this way only. It's just 3 parts. First part, you have this resistance network. इसको क्या बोलते हैं? ये resistance network को क्या बोलते हैं? Potential divider और voltage divider. Okay, potential divide हो रहा है ना. यहाँ पे total voltage क्या है? VCC. इधर थोड़ा drop होगा, इधर थोड़ा drop होगा, इधर थोड़ा ड्रॉप होगा, मतलब डिवाइड हो रहा है. Therefore this is known as a voltage divider network. क्या बोलेंगे इसको? Voltage divider network. So I'll just write it down here. The first point, the first what you can say block is the voltage divider network. So this part, the first block is the voltage divider network. ये जो green में दिख रहा है वो, ये हमने ओपैम के चैप्टर में किया है. This is the this part, this is the
कंपैरेटर पार्ट। एंड कंपैरेटर के लिए क्या यूज किया है? कंपैरेटर के लिए उन्होंने यूज किया है op-amp. Okay, so they have used op-amp in this case. This is block number 2, they which are used as comparators. ठीक है? And the third block is consisting of a flip-flop, RS flip-flop. Okay, so let us see the working one by one. Now उसके लिए सबसे पहले तो you have to understand this particular network. ये जो voltage divider है इसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. I am going to name this particular part. This particular part I am going to name it as VA, voltage at point A. I am going to name this part as VB, that is voltage at point B. Okay, क्यों ऐसे करना पड़ रहा है? क्योंकि आप देखेंगे ये दो कंपैरेटर है. एक तो ठीक है थ्रेशोल्ड, बाहर से आने वाला सिग्नल है, और जो दूसरा पॉइंट है वो ये नेटवर्क डिवाइडर पे कनेक्टेड है, राइट? तो ये थ्रेशोल्ड है, ये जो पॉइंट है इससे कंपेयर करेगा. आपको कंपैरेटर क्या है ये ऑलरेडी ओपैम्प के चैप्टर में कवर हो चुका है. कंपैरेटर मींस दो इनपुट है, दोनों पे जो इनपुट आ रहा है वो कंपेयर होने वाला है. इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो दो वोल्टेजेस आते हैं वो कंपेयर किया जाता है, राइट? तो ये कंपैरिजन. So these comparators have two inputs, inverting and non-inverting, and according to that which कौन सा टर्मिनल बड़ा है उसके हिसाब से 0 या 1 मिलेगा आउटपुट. ठीक है? तो अभी मैंने जैसे बोला we have to find out this voltage जिसको हमने VA नाम दिया था, this voltage जिसको हमने VB नाम दिया था. ठीक है? क्यों? क्योंकि ये दोनों भी वो ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क पे कनेक्टेड है और कोई भी इस पे कनेक्टेड नहीं है. आपको वायर ये सीधा ऐसे कनेक्शन करते हुए दिखाई दे रहा है बट इट इज नॉट कनेक्टेड ओवर हियर. ओके, इट इज ऑन टॉप ऑफ इट, इट्स नॉट कनेक्टेड थ्रू, ओनली एट दीज पॉइंट्स इट इज कनेक्टेड. तो हमको ये वोल्टेज जानना जरूरी है कितना है ना, तो ये इसके साथ कंपेयर हो पाएगा दो कंपेरेटर्स. सो दिस इज अ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क जिसका टोटल वोल्टेज कितना है? टोटल वोल्टेज है VCC. VA फाइंड करना है. सो आई विल राइट VA इक्वल्स टू वोल्टेज एट दिस पॉइंट. VA इज इक्वल टू, मैंने क्या समझाया वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क कैसे, वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे अप्लाई करते हैं? जितने भी जो पॉइंट हमने लिया है वो पॉइंट से नीचे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उतने. कितने रेजिस्टेंसेस है? मैंने क्या बोला है? यहाँ पे 5K है, तीनों भी 5K है, राइट? 5K 5K एंड दिस इज ऑल्सो 5K, इसीलिए उसका नाम है IC 555, है ना? तो VA फाइंड करना है. ये VA के नीचे कितने रेजिस्टेंसेस है? 5K 5K. सो 5K प्लस 5K दैट विल बिकम 10K अपॉन वो लाइन में जितने भी रेजिस्टेंसेस है उसका एडिशन. 5 कितने रेजिस्टेंसेस है वो लाइन में? 5 5 5, तो कितना हुआ? 15K इनटू टोटल वोल्टेज दैट इज VCC. ठीक है? K कैंसिल हो जाता है, 5 2 जा 5 3 जा, कितने आया VA? VA आया है 2/3 VCC. ओके, तो ये VA आया है 2/3 VCC. मतलब ये जो कंपैरेटर है वो कंपेयर करेगा पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड एंड VA जो है 2/3 VCC. VCC जो जितना भी है, जनरली IC 555 वर्क्स इन द वोल्टेज range of around 4.5 to 6 volts. Okay, so जो भी voltage range है उसके हिसाब से 2/3 VCC it is going to supply voltage का it is going to take. Fine. So what will you first write? Block diagram draw करोगे. Then you will say it has got 3 blocks. First one it is voltage divider. Second part is comparators. 2 comparators are used, and the last one is RS flip-flop. Okay. Then you will talk about VA. VA is connected to the potential divider and this point B is connected to the potential divider. Hence दोनों का voltage निकालना जरूरी है. ठीक है? अब VB देखते हैं. VB same method. नीचे कितने रेजिस्टेंसेस हैं? ये पॉइंट के नीचे कितने रेजिस्टेंस है? एक ही है, उसका एडिशन क्या होगा? 5K. 5K अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो लाइन में? कितने? 5 + 5 + 5 15K इनटू VCC. क्या होगा ये? 5 1 जा 5 3 जा.
So that will become 1/3 VCC. Okay, that will become 1/3 VCC. मतलब ये जो दो पॉइंट्स है इसमें से जो भी बड़ा होगा, if the I'll show you to you in the next slide. ये जो है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये है इन्वर्टिंग टर्मिनल. ओके, नाउ इफ इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दैट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज ग्रेटर देन दिस VA, if it is greater then the output will be plus VSAT, plus saturation. That means 1 आएगा आउटपुट, और आउटपुट अगर 1 आया तो यहाँ पे ये जाएगा R पे 1 आएगा. दैट मीन्स दिस फ्लिप फ्लॉप विल बी रीसेट. क्या होगा ये? दिस विल बी रीसेट. R is equal to 1 होता है, that is why it will become reset. Okay, now if R is equal to 1, that means आपका आउटपुट होगा 0. Okay, मैं एक और बार आपको I will clear all my drawings over here. ठीक है, ये प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. 2/3 VCC यहाँ पे आने वाला है, ये VA. ठीक है, VA पे होने वाला है 2/3 VCC. See, this is how the comparator is going to work. मतलब दोनों कंपैरेटर में अगर पॉजिटिव वाला V प्लस अगर ग्रेटर होगा, that time the output will be VSAT, that is logic 1. Okay, and if उल्टा नेगेटिव वाला बड़ा है पॉजिटिव से, then it will be minus VSAT, that is logic 0. ये सब डिटेल में हमने ओपैम्प के चैप्टर में किया, मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ ये वाले सेक्शन में. ओके, दोनों इक्वल है तो 0 आएगा. ठीक है, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केस. अगर ये थ्रेशोल्ड और ये पॉइंट पे अगर पॉजिटिव वाला ग्रेटर हुआ तो यहाँ पे आएगा लॉजिक 1. लॉजिक 1 आया मतलब R पे 1 आया, एंड RS फ्लिप फ्लॉप में R स्टैंड्स फॉर रीसेट. रीसेट मतलब 0. मतलब आपकी फोन की सेटिंग्स में भी होता है ना, एक सेटिंग्स में रीस्टोर, रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स, ऐसा है. रीसेट मतलब सब बंद कर दो. ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू विल गेट आउटपुट एज 0. और आउटपुट 0 है इसीलिए दिस विल गो इनटू कट ऑफ स्टेट. इसके बेस पे कनेक्टेड है, ये है ना, इसके बेस पे कनेक्टेड है, इसके बेस पे कनेक्टेड है, तो R और 0 अगर बेस पे आता है तो ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ स्टेट. कट ऑफ मतलब ओपन स्विच. मान लो ये चीज है ही नहीं, यहाँ पे बेस पे 0 आ रहा है ना, तो ये कट ऑफ स्टेट में हो गया. मान लो ये ओपन स्विच है, ऑफ है. ठीक है, अब ये ऑफ है तो तब ये कैपेसिटर क्या करता है, आप ये देख सकते हो, कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड. उसको इधर जाने के लिए रास्ता है क्या? नहीं है, तो वो यहां से VCC के थ्रू चार्जिंग हो जाता है. So it gets charged. Okay, now if in this case ये वाले कंपैरेटर, अगर ये वाले कंपैरेटर को देखेंगे तो if this is ये जो पॉइंट है VB, if that is greater than trigger, अगर ये 1 हो जाता है तो S1 हो जाएगा. S मतलब सेट हो जाएगा. Q will be 1, और ये आउटपुट जब 1 होगा this will act as a closed switch. ये चलेगा, सैचुरेशन में चलेगा. 1 जाएगा इसके बेस में, ट्रांजिस्टर के बेस में 1 जाएगा, और ट्रांजिस्टर के बेस पे अगर 1 रहता है तो द ट्रांजिस्टर विल स्टार्ट वर्किंग. इट विल वर्क इन द सैचुरेशन रीजन. दैट मींस इट विल एक्ट एज अ क्लोज्ड स्विच. अभी इसको जाने के लिए रास्ता है तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा. द कैपेसिटर विल गेट discharged. So this is the working of the block diagram of IC 555, which is asked many times. Okay, so that is what. So it is divided into 3 parts: voltage divider, comparator, and flip flop. And this transistor is called the discharge transistor. क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ये क्लोज स्विच हो जाता है, कैपेसिटर इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है, एंड व्हेन इट इज ओपन स्विच कैपेसिटर इसके थ्रू चार्ज हो जाता है, इसलिए इसको डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर कहा जाता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द ब्लॉक डायग्राम. एज आई टोल्ड, कंपैरेटर का वो पार्ट मैंने उठा के यहाँ पे एनलार्ज किया है. If the non-inverting terminal is greater, then you will get 1 at the output. If the inverting terminal is greater, then you will get 0 at the output. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर R पे 1 हुआ तो ये देखो, मैं फ्लिप फ्लॉप क्या है, 1 बिट स्टोर करता है ना. इट स्टोर्स 1 बिट. इट्स अ मेमोरी विच स्टोर्स 1 बिट. तो ऑलरेडी उसमें कुछ तो मेमोरी स्टोर हुआ होगा.
तो अगर 0 0 है, इफ बोथ द इनपुट्स आर 0, तो कोई चेंज नहीं, जो फ्लिप फ्लॉप में डिजिट था 0 या 1 जो भी है वो वही रहेगा, इसलिए इधर लिखा है प्रीवियस स्टेट, नो चेंज। कोई चेंज होगा क्या? नहीं, जो उसमें था वही रहेगा। अभी अगर R में 1 आता है, R स्टैंड्स फॉर, मैंने क्या बोला था, रीसेट, मतलब रीसेट, मैं अपना फोन रीसेट कर रही हूँ, मैं अपना बैटरी रीसेट कर रहा हूँ, ऐसा हम रीसेट बोलते हैं, दैट मींस कमिंग टू 0, है ना। So if R is equal to 1, then it will go to what will be the output? The output will be 0. उसको बोलते हैं रीसेट। अगर S पे 1 आया तो क्या होगा? वो सेट होगा। सेट मतलब आउटपुट विल बी 1, इट इज सेट। अगर दोनों 1 1 होगा, ये स्टेट पॉसिबल नहीं है, इट इज नोन एज फॉरबिडन स्टेट। Okay, I hope things are clear. So this, what I have just enlarged this over here, मतलब इसके enlarge करके मैंने दूसरे slides बनाए। Okay, so in short एक और बार बता देती हूँ, these are comparators, voltage divider, यहाँ पे 2/3 VCC value है, यहाँ पे 1/3 VCC value है। अगर threshold greater होता है, that means the V plus greater होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 मतलब R is 1, R 1 होगा तो that means reset state है, that means Q is 0, बेस पे 0 होगा, कैपेसिटर को ये कैपेसिटर विल बी इन द कट ऑफ, ट्रांजिस्टर विल बी इन द कट ऑफ स्टेट, इट विल एक्ट एज एन ओपन स्विच, ये होगा चार्ज, कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, अब अगर इधर देखा जाए तो अगर ये ट्रिगर वार्निंग कम है इससे, दैट मींस द आउटपुट विल बी 1 अगेन, सेट होगा, सेट मतलब Q will be 1, when Q will be 1 this will be in saturation, that will be, it will act as a closed switch, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, दैट इज व्हाई इसका नाम है डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555। I think this is clear. It is asked many times, pin diagram and IC 555 block diagram in two different questions. Now IC 555, as I told you, applications, it is used in numerous ways. Okay, it is used as multi vibrators, it can be used in timers, it can be used in alarm systems, many things it is used. Fine. So there are two applications, monostable and astable multi vibrators, which we will do in the next class. There are all three other applications also, PAM, PWM and FSK. This has been cancelled in your syllabus. Okay, PAM, PWM, FSK ये कैंसिल हो चुका है, सिर्फ दो और टॉपिक बचा है, मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल, बस उतना ही, एंड देन द चैप्टर इज डन। थैंक यू।